Next topic, organic chemistry. Third topic, aldehydes, ketones and carboxylic acid. This topic asks for exam. This topic asks for exam. Mass 9 marks, and in annual question paper number is 9 number question. Then 34 and 35 question number. This question asks for 5 marks. In this 5 marks, A part 3 marks, B part 2 marks. Here also same 5 marks question. A part 3 marks, then B part 2 marks, and this question asks for exam 1 marks. Here topic aldehydes, ketones and carboxylic acid. Marks 9. Question number 9, 34, 35. 9 number question 1 marks. 34 number 5 marks. In this question, A part 3 marks, B part 2 marks. Question number 35, 5 marks question. A part 3 marks, B part 2 marks. This is a marks. Okay. Next, introduction. Here, introduction. First one, aldehydes. First one, aldehydes. In this aldehyde, the functional group of aldehyde is bond CHO, generally represented as RCHO, where R is alkyl or aryl group. Where R is alkyl or aryl group. For example, alkyl group CH3CHO. Name of this compound is acetaldehyde. Name of this compound is acetaldehyde. Aryl means benzene ring. Aryl means benzene. Name of this compound is benzaldehyde. Name of this compound is benzaldehyde. This is a aldehyde. Then next, ketones. Next one, ketones. Here, the functional group of ketone is CO. Functional group of ketone is CO. Generally represented are C double bond R. Where this R is alkyl or aryl group. Where R is alkyl or aryl group. For example, CH3, C double bond CH3. Name of this compound is acetone. Another example here. CH3. Name this compound is acetophenone. Here in ketone, this generally represented as a RCOR. These two alkyl groups are same or different. जैसे हमने ईथर में देखा, दोनों मिथाइल ग्रुप सेम हो गए तो हम सिंपल ईथर बोल सकते हैं. यहाँ पे सिंपल कीटोन और सिमेट्रिकल कीटोन बोल सकते हैं. दोनों सेम रहेंगे, दोनों डिफरेंट रहेंगे तो उसे हम बोल सकते हैं मिक्स्ड कीटोन और अनसिमेट्रिकल कीटोन. वहां पे ईथर में ऑक्सीजन के बाजू में दो ग्रुप सेम रहेंगे तो हमने क्या बोला था, सिंपल ईथर और सिमेट्रिकल ईथर.
और डिफरेंट रहेंगे तो मिक्स्ड रहता। सेम है, फंक्शनल ग्रुप चेंज है, ये दोनों भी आर सेम रहेंगे तो उसे सिंपल कीटोन बोलेंगे, दोनों डिफरेंट रहेंगे तो उसे हम मिक्स्ड कीटोन बोलेंगे। दिस इज अ जनरली इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, generally represented as where R is an example. Aldehyde ketone. The next carboxylic acid. The third one carboxylic acid. Here the functional group of carboxylic acid is COOH or CO2H. Okay, this is a functional group. Generally represented here are CO2H, where R is alkyl or aryl group. Where R is alkyl or aryl group. For example, CH3CO2H, name is acetic acid. Another example, aromatic benzoic acid. Here this is a introduction. Here functional group of aldehyde bond CHO, generally represented as a RCHO, where R is alkyl or aryl group. Alkyl means methyl ethyl propyl. Here for example CH3CHO, name is acetaldehyde. Aryl means benzene ring. Here benzene ring directly attached to CHO means benzyl, name is benzaldehyde. Then ketone, functional group CO, generally represented as a R, C double bond O R. These two are same or different. Same हो गए तो simple, different हो गए तो mixed और unsymmetrical. Where R is alkyl group or aryl group. Where R is alkyl group, acetophenol example. Where R is aryl or alkyl, acetophenol. Then carboxylic acid. Here carboxylic acid, functional group bond CO2H, generally represented as a RCO2H, where R is alkyl or aryl group. For example, acetic acid and benzoic acid. ये आपको पता होगा, टॉपिक इजी रहेगा. फंक्शनल ग्रुप जनरली रिप्रेजेंटेड एंड एग्जांपल, ये आपको पता होगा तो यानी इजी रहेगा. ओके, नेक्स्ट point, nomenclature. IUPAC nomenclature, common name. Here in the IUPAC system, the aldehydes are known as alkanes. मतलब जो लास्ट टर्मिनल alkane, ALK, ANE is replaced by AL, alkanes. Here the name of the aldehydes is derived by replacing the terminal E, मतलब लास्ट का ही, alkane का लास्ट का ही, of the name of the corresponding alkane by AL. अब देखो for example, हमने एक एग्जांपल लिया. This is a common name is formaldehyde. देखो यहाँ पे this is a functional group of aldehyde. वहाँ पे पता नहीं करेगा, वहाँ पे R की जगह हाइड्रोजन भी रहता है, इतना ध्यान रखो. aldehyde में H भी रहता है, कीटोन में नहीं रहता, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी H नहीं रहेगा, सिर्फ aldehyde में रहेगा. आप देखो दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ aldehyde. हियर हाइड्रोजन, कॉमन नेम इज फॉर्माल्डिहाइड. तो यहाँ पे आपको नाम देना. नाम क्या बोला है? जो भी पैरेंट अल्केन रहेगा उसका लास्ट टर्मिनल ई जो रहता है वो रिप्लेस करके एल. तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1,
नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1, तो पैरेंट नेम रहता है मीथेन। हमने फर्स्ट ईयर में 10 में स्टडी किया है मीथेन CH4 वाला। ओके, बट प्रेजेंस ऑफ अर्लियर फंक्शनल ग्रुप लास्ट ए टर्मिनल E is replaced by क्या बोला आपको Al। दिस इज अ IUPAC name। Another example, CH3 C डबल बॉन्ड OH, बराबर। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो पैरेंट इसका नेम रहता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 2, नेम इज इथेन रहेगा, बराबर। तो अब प्रेजेंस ऑफ अर्लियर फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल मतलब लास्ट वाला इज रिप्लेस्ड बाय इन IUPAC nomenclature presence of earlier last terminal is replaced by Al। this is an example। okay, then branch the chain earlier, then following rules are follows। see here rules, next rules। नेक्स्ट IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए 4 रूल्स है, उस रूल के हिसाब से आपको नंबरिंग यानी नेम देना है, आपको नंबरिंग करना है, नेम देना है आपको। वो 4 रूल्स है। पहला वाला रूल्स देखो, द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द CHO ग्रुप, जो भी आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यू चेन सिलेक्ट करने वाले कंटेनिंग CHO ग्रुप इज कंसीडर्ड एज अ पैरेंट चेन and the name is derived by replacing the terminal E of the name corresponding alkane by suffix Al। अभी मैंने पहले जो बताया आपको, इससे पहले सेम उसमें बाद में सेकंड रूल क्या बोलता है, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड, उसमें सब्स्टिट्यूएंट होगा, केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड पैरेंट चेन इज नंबर्ड इन सच वे that the aldehyde group CHO group gets the lowest number, that is the number is 1। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, जब भी सब्स्टिट्यूएंट होगा तो नंबरिंग कैसे करना है, CH3 CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CHO। एक एग्जांपल हमने जनरली एक एग्जांपल देखा। अब ये रूल क्या बोलता है, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड्स द पैरेंट चेन इज नंबर्ड इन सच वे that the aldehyde group CHO group मतलब this group gets the lowest number, that is the number 1। तो यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH3 CH2 CHO, तो यहाँ पे देखो राइट साइड से नंबरिंग कर सकते हैं और लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। राइट से नंबर करेंगे तो इसे हम नंबर 1 आएगा, 1 2 3 4 एंड 5, दैट इज द फर्स्ट लोएस्ट नंबर आएगा। ओके, दिस इज अ एग्जांपल। सेकंड वाला रूल क्या बोला है, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड्स द पैरेंट चेन इज नंबर्ड इन सच वे दैट, अशा पद्धतीने नंबरिंग करा की दैट द अल्डिहाइड ग्रुप मतलब CHO ग्रुप गेट्स द लोएस्ट नंबर, मतलब जो भी अल्डिहाइड ग्रुप है उसे लोएस्ट नंबर मतलब एक नंबर। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है CH3 CH2 CH CH3, ये सब्स्टिट्यूएंट है CH2 CHO। अब यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 नंबर आता है, बट रूल क्या बोलता है, लोएस्ट नंबर आना चाहिए मतलब सिंगल 1 नंबर आना चाहिए। तो राइट साइड से नंबरिंग करेक्ट है 1 2 3 4 5, नाम आएगा उसका 3 मिथाइल पेंटानल, ये नाम उसका होगा, ये होगा रूल नंबर सेकंड होगा। अब थर्ड देखो, द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय नंबर्स, जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा हम इंडिकेट कैसे करेंगे, नंबर्स। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर पे इसे इंडिकेट किया हमने मिथाइल ग्रुप है नाम से 3 मिथाइल होता है। ओके, अब लास्ट वाला रूल, व्हेन द अल्डिहाइड ग्रुप इज अटैच्ड टू द रिंग, जब अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रिंग को अटैच होगा द सफिक्स कार्बाल्डिहाइड, वहां पे क्या लिखना है कार्बाल्डिहाइड,
is added after the full name of the cycloalkane. The numbering of the ring carbon atom start from the carbon atom attached to the aldehyde group. नंबरिंग कैसे करना है? अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ए रिंग है, ओके, यहाँ पे aldehyde ग्रुप है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, ओके। अब नंबरिंग कैसे करना है? वो क्या बोल रहा है, रूल क्या बोल रहा है? ऐसे ही नंबरिंग करो। ये जो देखो यहाँ पे when the aldehyde group is attached to the ring को अटैच होगा तो सफिक्स क्या रहेगा? कार्बाल्डिहाइड रहेगा। is added after, ये कार्बाल्डिहाइड आपको ऐड करना है। is added कब ऐड करना है? after the full name of the cycloalkane, जो भी cycloalkane है उसका फुल नेम ले लें, लिखने के बाद कार्बाल्डिहाइड ऐड करो। the numbering of the ring carbon atom start from the carbon atom attached to the aldehyde group. नंबरिंग स्टार्ट कहां से करना है? जिस कार्बन पे वो aldehyde फंक्शनल ग्रुप अटैच है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करना है, 1 2 3। मतलब ये जो CHO ग्रुप है इससे नंबरिंग इस कार्बन से स्टार्ट करना है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन मत करो, जब ऐसा होगा विदाउट रिंग वाला तो नंबर aldehyde ग्रुप को नंबर 1 आएगा इस कार्बन को। अब रिंग में रहेगा तो इसे 1 2 ऐसा नंबर नहीं आएगा, इसे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3। अब उसका नेम क्या रहेगा? 3 कार्बन पे क्या है? विच ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल, ओके, 3 मिथाइल। साइक्लिक रिंग है, साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने? 1 2 3 4 5 6, मतलब साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो aldehyde ग्रुप है, लास्ट टर्मिनल ई इज रिप्लेस्ड बाय साइक्लोहेक्सेन और ई एंड लास्ट ए ऐड करना है कार्बाल्डिहाइड, ओके। सॉरी यहाँ पे हेक्सेन आएगा, ए एन ई, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, दिस इज अ नेम, ओके, दिस इज अ रूल्स। अब हम एग्जांपल देखते हैं, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स, फॉर्मूला, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आना ही चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल, HC double bond hydrogen, this is an aldehyde functional group, here hydrogen, common name is formaldehyde, common name is formaldehyde। अब यहाँ पे आईयूपीएसी नाम देना है तो यहाँ पे पैरेंट में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 1 कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1, then parent name is methane, but presence of functional group aldehyde, last terminal E is replaced by Al, this is IUPAC name and this is a common name। अब example number 2, CH3 C double bond O hydrogen, इसका कॉमन नेम है acetaldehyde, कॉमन नेम इज acetaldehyde, कॉमन नेम क्या है उस एग्जांपल का? acetaldehyde। आपको आईयूपीएसी नेम देना है तो वहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 2 कार्बन एटम है, तो पैरेंट नेम क्या रहता है? इथेन, पैरेंट नेम इथेन, बट प्रेजेंस ऑफ aldehyde फंक्शनल ग्रुप, लास्ट टर्मिनल E is replaced by Al। रेड पेन से लिख रहा हूं, आपको समझने के लिए लिख रहा हूं, आप एक ही पेन से लिखो चलेगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं? लास्ट E is replaced by Al। Another example, third number, CH3 CH2 C double bond H, इसका नाम है
अल्डिहाइड, एक कॉमन नेम है। अब इसका आईयूपीएसी नेम, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है वहां पे 3 कार्बन एटम है, तो क्या रहेगा प्रोपेन, but last terminal is replaced by air because presence of aldehyde functional group. Another example, next example, CH3 CH CH3 C double bond H. Next example, नाम है isobutyl aldehyde, name of this compound is isobutyl aldehyde. अब इसका आईयूपीएसी नेम देना है, तो नंबरिंग करना है 1 2 3। रूल नंबर 2, लोएस्ट नंबर फंक्शनल ग्रुप aldehyde, ओके, दैट इज द नंबर 1। अब उसका नाम देना है, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप है, तो नाम आएगा 2 मिथाइल 1 2 3 है, मतलब क्या आएगा प्रोपेन, एंड लास्ट टर्मिनल इज रिप्लेस्ड बाय एयर। दिस इज अ 2 मिथाइल प्रोपेनल सब्स्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट एग्जांपल, 5 नंबर एग्जांपल, CH2 double bond CH C double bond H, इसका कॉमन नेम है एक्रोलीन, कॉमन नेम इज एक्रोलीन। अब इसका आईयूपीएसी नेम देना है, तो नंबरिंग करना है 1 2 3। यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ए भी फंक्शनल ग्रुप है और ये CHO ए भी फंक्शनल ग्रुप है। तो नाम टोटल के नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 3 है, तो रूट वर्ड आता है प्रोफ 2 EN AN, मतलब देखो इसका नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, इसके लिए वो रूट वर्ड रहेगा प्रोफ 2 का मतलब कार्बन कार्बन, कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड मींस ENE, इसलिए EN लिखा है, और अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसके वजह से यहाँ पे लास्ट लिखा है AL। दिस इज अ प्रो 2 EN, दिस इज अ आईयूपीएसी नेम, दिस इज द एग्जांपल ऑफ aldehydes 1 2 3। दिस एग्जांपल इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी आप रिएक्शन आगे प्रिपरेशन होगा, जो भी रिएक्शन होगा वही 3 बहुत बार आएंगे आपको, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम और फॉर्मूला याद में रखो, ये इंपॉर्टेंट है। आपको बोला अल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH3CHO फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, देन प्रोपेनॉल है तो CH3CH2CHO, ये जो फॉर्मूलाज है और उसके कॉमन नेम है आईयूपीएसी नेम इंपॉर्टेंट रहेगा, आप जो भी रिएक्शन रहेगा, ओके। नेक्स्ट अब नेक्स्ट एरोमेटिक अल्डिहाइड्स, मतलब बेंजीन रिंग CH, इसे हम क्या बोल सकते हैं एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। इन एरोमेटिक अल्डिहाइड्स द CHO group is directly attached to the benzene ring. See here, in aromatic aldehydes CHO group is directly attached to the benzene ring. The name of the simplest aromatic aldehyde carrying aldehyde group on benzene, aldehyde group on benzene, name is benzene कार्बाल्डिहाइड, और सिंपली हम उसे बोल सकते हैं बेंजाल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल, हम इसे क्या बोल सकते हैं कॉमनली बेंजाल्डिहाइड, और इसमें नाम है तो क्या आएगा बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, और भी नाम क्या रहेगा इसमें ब्रैकेट में बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। अब जब सब्स्टिट्यूएंट होगा तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे अर्धो मेटा पैरा पोजीशन ए भी बोल सकते हैं आप, और
नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 1 3 और 1 4 डिपेंडिंग अपॉन दी पोजीशन। अब एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल अब देखो मैंने यहाँ पे अल्डिहाइड लिखा है और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है। अब देखो यहाँ पे Br अटैच किया तो नंबरिंग 1 2 है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 2 ब्रोमो, इसका नाम क्या, बेंजालियाइड, नेम इज बेंजालियाइड। ओके, एक एग्जांपल अनदर, आपको CHO ग्रुप कहां पे भी रहो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर, जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन का बेंजीन रिंग को वहां से नंबरिंग कर। अब इधर देखो CHO, इधर NO2 है 1 2 3, इस पोजीशन को मेटा बोलते हैं, मेटा नाइट्रो बेंजालियाइड, मेटा नाइट्रो बेंजालियाइड, नेम इज मेटा नाइट्रो बेंजालियाइड। और ऐसे बोल सकते हैं ऑर्थो नाइट्रो बेंजालियाइड, सेकेंड वाला क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो नाइट्रो बेंजालियाइड। अनदर एग्जांपल दिया और एक एग्जांपल है। अब ये एग्जांपल देखो, CHO है, यहाँ पे CH3 है। अब देखो 1 2 नेम आएगा 2 मिथाइल, इसका नाम बेंजालियाइड। और एक एग्जांपल है, ऐसा होगा, अब दिस साइड चेन हो जाएगा तो ये क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। यहाँ पे देखो डायरेक्टली अटैच है CHO, इधर डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग को, बट यहाँ पे नहीं है, तो नंबरिंग आएगा 1 2। हम इसे जैसे हम CH3 होगा तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, मिथाइल। C2H5 होगा तो हम इसे बोल सकते हैं इथाइल। और जब A होगा PH और C6H5 होगा और A बेंजीन रिंग होगा तो उसे हम बोल सकते हैं फिनील। जैसे मिथाइल CH3 को मिथाइल बोल सकते हैं, वैसे C2H5 को इथाइल, वैसे PH और C6H5 और एक ग्रुप रहेगा बेंजीन बॉन्ड तो उसे हम फिनील बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा 2 फिनील, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 2, मतलब इथेन, and last terminal is replaced by Al because presence of aldehyde functional group. This is a aromatic aldehydes. Okay, next अब देखो नेक्स्ट नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। अब कीटोन का नोमेनक्लेचर देना है, वहां पे भी 3 रूल है। अल्डिहाइड में इतना ही ध्यान रखो, इतना जो लिखा है मैंने बोर्ड वो रूल्स लिखा है। अल्डिहाइड में हम क्या कर रहे हैं, टर्मिनल E इज रिप्लेस्ड बाय Al कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ONE है, सेम रूल है, फक्त फंक्शनल ग्रुप चेंज है। अब देखो इन द IUPAC सिस्टम द कीटोन्स आर नोन एज अल्केनोन, लास्ट वन क्या है, अल्डिहाइड होगा तो Al, अब यहाँ पे क्या रहेगा ONE, A चेंज रहेगा। ओके, so rules, the longest chain carrying the carbonyl group is considered as the parent chain and the name is derived by the replacing terminal E, जो मैंने बोला आपको, replacing terminal E of the name of corresponding alkane by the suffix ONE। मतलब कीटोन होगा
तो लास्ट टर्मिनल ई रिप्लेस्ड बाय क्या करना है आपको, ONE। फॉर एग्जांपल देखो आप CS3 C डबल बॉन्ड O CS3 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो ये आएगा प्रोपेन, बराबर। नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3, तो पैरेंट अल्केन का नाम क्या आएगा, प्रोपेन। बट प्रेजेंस ऑफ कीटोन फंक्शनल ग्रुप लास्ट टर्मिनल E is replaced by ONE. This is a IUPAC name. अब सेकंड रूल, in case of substituted ketones the parent chain is numbered in such way that the keto group gets the lowest number, aldehyde में aldehyde gets the lowest number, that is 1। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल CS3 CH CS3 C डबल बॉन्ड O CS3 है। अब देखो लेफ्ट साइड से नंबरिंग किया तो 1 2 3 4 आता है, मतलब 3 नंबर आता है एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप को, और लोएस्ट नंबर आना चाहिए, मतलब यहाँ से 1 2 3 और 4, जो भी नंबर कम आएगा उस साइड से आपको नंबरिंग करना है। ये पूरा रूल्स वगैरह IUPAC नोमेनक्लेचर आपको फर्स्ट ईयर में है पूरा 1। अब देखो द पोजीशन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप एंड द सब्स्टिट्यूएंट्स इज इंडिकेटेड बाय द नंबर। जो भी सब्स्टिट्यूएंट रहेगा और कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसे आप पोजीशन देगा, उससे क्या कर सकते हैं, इंडिकेटेड बाय, कैसे कर सकते हैं, बाय नंबर्स, मतलब 1 2 3। अब इसके बाद एग्जांपल्स, कीटोन्स एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स कॉमन नेम है IUPAC नेम। फॉर एग्जांपल फर्स्ट CS3 C डबल बॉन्ड O CS3, कॉमन नेम इज 2 मिथाइल है, डायमिथाइल कीटोन, डायमिथाइल कीटोन और एसीटोन, अनदर नेम इज एसीटोन। अब यहाँ पे IUPAC नेम देना, IUPAC मींस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम है IUPAC सिस्टम। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, वहां पे 3 कार्बन एटम है, तो यहाँ पे रहेगा प्रोपेन ANE, बट लास्ट टर्मिनल E is replaced by ONE because presence of ketone functional group. This is the first example. Number 2, CS3 C double bond O CH2 CS3, okay, ethyl methyl ketone, common name is ethyl methyl, यहाँ पे क्या आएगा, कीटोन आएगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, तो आएगा ब्यूटेन, बट लास्ट टर्मिनल E is replaced by ONE because presence of ketone functional group, okay। Then next example, third number CS3 CH2 C double bond O CH2 CH3, 2 मिथाइल है, दोनों ही 2 इथाइल होंगे, तो यहाँ पे नेम आएगा डाई इथाइल कीटोन, ये रहेगा कॉमन नेम। अब आपको IUPAC से देना है तो नंबरिंग करना पड़ेगा। अब देखो 1 2 3 4 5, आपने राइट साइड से नंबरिंग किया तो ऐसे 3 नंबर आएगा, लेफ्ट साइड से किया 1 2 3 है, कौन से भी साइड से करो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका नाम लिखना है आपको, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा पेंटेन PNTA, last terminal E replaced by presence of ketone ONE, but you indicate the position 3 ONE, 3 मतलब कार्बन नंबर 3 पे वो कीटोन
फंक्शनल ग्रुप है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से नहीं पूछेंगे, मतलब जो भी प्रिपरेशन रहेगा ये दोनों बार बार आएंगे, रिएक्शन रहेगा तो उसमें ये दोनों आते हैं. दिस इज अ nomenclature rules and example for ketone. अब नेक्स्ट देखो, in cyclic ketones the carbonyl carbon is the given number 1. For example, अब एग्जांपल देखिए आप, ये साइक्लिक रिंग है, मतलब साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6, हेक्सेन, लास्ट टर्मिनल is replaced by ONE because presence of ketone functional group. अब subsequent होगा तो आप देखो यहाँ हम नंबरिंग करेंगे ऐसे 1 2 3 रहेगा 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सानोल, लास्ट में क्या आएगा OAD. दिस इज अ IUPAC नेम. अनदर एग्जांपल वन टू नंबरिंग किया हमने तो नाम आएगा इसका 2 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5, मतलब साइक्लो 5 is pentane AN, but last terminal is replaced by presence of ketone OAD. This is a cyclic ketones, nomenclature of cyclic ketones. Okay. अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप. इन दिस कार्बोनिल कार्बन sp2 type of hybridization. Carbonyl carbon type of hybridization is, this is important for exam. Carbonyl carbon which type of hybridization, कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है sp2. ये जो कार्बोनिल कार्बन है sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, ये आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं. आई थिंक 2014 में है और 2017 में 9 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हो आप. तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है वो कौन से टाइप का हाइब्रिडेशन देता है sp2, और ये जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे वो रहता है 120 डिग्री. बॉन्ड एंगल कितना रहता है 120 डिग्री रहता है. In this carbonyl structure, oxygen is more electronegative. Oxygen is more electronegative, hence attain partial negative charge, and carbon attain partial positive charge. See here. Delta negative, delta negative and delta positive और negative. This partial negative charge क्यों है, more electronegative है और ये less electronegative है, hence delta positive. हम उसे क्या बोल सकते हैं partial charges. Okay, this is a structure of carbonyl group. इसमें से आपको important है जो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन रहता है, इस पे 1 मार्क ले क्वेश्चन रहता है. विच टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन sp2, और इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहता है प्लेनर रहता है. स्ट्रक्चर कौन सा रहता है प्लेनर रहता है. टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन sp2, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड स्ट्रक्चर इज प्लेनर एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस ऑक्सीजन अटेन नेगेटिव चार्ज, carbon attain partial positive charge. Okay.